Good morning to one and all present here, respected principal, teachers, and my dear friends. Today we have gathered to observe Martyrs' Day, a solemn occasion to honor the memory of our beloved Mahatma Gandhi, the father of our nation. On this day in 1948, he sacrificed his life for the ideals of truth and non-violence, leaving behind a legacy that continues to inspire generations. The day is not just a remembrance but a call to action and opportunity to reflect on his values of peace, unity, and selfless service. To commence today's proceedings, I request everyone to maintain decorum and join me in welcoming our esteemed principal, teachers, and students to this special assembly. As a mark of respect, we shall now conduct portrait worship of Mahatma Gandhi. I humbly invite our respected principal and teachers to come forward and offer flowers to his portrait. आजाद बिना खड़क बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा राम आंधी में जलती रही गांधी तेरी मशाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम Let's go. Thank you, sir, and all teachers. Now, let us take a pledge to uphold the ideals that Mahatma Gandhi stood for truth, non-violence, and unity. I request Navagadi from 6th A to kindly lead us in taking the pledge. I request everyone to stand in attention and repeat after sister. So stand up. On this Martyrs' Day, I pledge to honor the memory of all the brave martyrs who sacrificed their lives for the freedom and progress of our nation. I will uphold the values of unity, integrity, and patriotism that they fought for. I promise to contribute towards the betterment of a society and work towards building a peaceful and prosperous nation. I will respect the sacrifices made by our heroes and carry their spirit of selflessness in my actions and thoughts, always striving to make our country proud. Jai Hind. To enlighten us further, I now invite Triana Tashildar from 7 to share a short speech on the significance of this day and how can we incorporate Gandhiji's teachings into our lives. Good. Stand it in. Good morning, one and all. Today we have gathered to pay tribute to the brave men and women who have made the ultimate sacrifice for our nation. Martyrs' Day is a solemn reminder of the price of freedom and the courage of those who have fought to protect it. We honor the memory of our martyrs who have given their lives to defend our country, our lives, and our way of life. Their selflessness, patriotism, and sacrifice will never be forgotten. We remember the struggles, the pains, and the hardships that our martyrs and their families have endured. We recognize the immense depth of gratitude that we owe them. As we pay our respects, we also reaffirm our commitment to the values that our martyrs have fought for: freedom, justice, equality, and human rights. Let us strive to build a nation that is worthy of their sacrifice, a nation that is just, equitable, and peaceful.
To the families of our martyrs, we offer our deepest condolences and gratitude. Your loved ones will always be remembered and honored. Let us observe a moment of silence to pay our respects to our martyrs. Thank you. Thank you, Dee. Next, to give us deeper insights into Gandhiji's values, I now request our respected teacher, Mr. Santosh Patil sir, to share their thoughts on relevance of his teachings in today's world. सुप्रभात बच्चों। तो 30 जनवरी को आज के यह दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए आज के दिन शहीद दिवस के तौर पर भी हम मनाए जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना प्राण समर्पित किया था। तो इसीलिए हम इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाए जाते हैं। तो इतना ही नहीं, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भी हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों में से सुखदेव और राजगुरु इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसीलिए इनके नाम पर भी यहाँ शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या किया जाता है? तो इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री और ऐसे बहुत सारे गण्यमान्य हस्तियाँ इस दिन उनके समाधि पर राजघाट समाधि पर जाकर सब लोग इनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो इतना ही नहीं, इनके योगदान जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने जो योगदान दिया है, इस योगदान के बारे में भी बताया जाता है। तो देखो, महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए जो अपना जीवन समर्पित किया है, पूरे गरीब लोगों के लिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो उस समय उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी, और वो एक बहुत ही अच्छे खानदान के व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए अपने कपड़े भी त्याग दिए थे। मतलब छोटे जो गरीब लोगों के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, इसीलिए उन्होंने भी जो बहुत ही कम कपड़े पहनते थे, जो जितना गरीब लोगों के लिए मिलता ही नहीं था, फिर भी उन्होंने इसी तरह अपना जीवन बिताया। तो महात्मा गांधी जी के बारे में और भी मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहता हूँ, जो बचपन से जो उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उन्होंने उसके बाद कैसे आंदोलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। और इनकी शिक्षा गुजरात से ही, प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से ही प्रारंभ हुई। उसके बाद इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1888 में वे लंदन गए, वहाँ पर कानून शिक्षा प्राप्त करने के लिए वकालत की। तो उसके बाद 1888 के बाद फिर वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तो वहाँ पर 1 वर्ष के एग्रीमेंट के तौर पर वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। जीवन उन्होंने हमारे देश के लिए ही समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने जो पहला आंदोलन प्रारंभ किया वो था चंपारण आंदोलन। तो इस आंदोलन बहुत ही सफलता से उन्होंने समाप्त की। और उसके बाद 1918 को जो है सब चंपारण आंदोलन हो गया। उसके बाद 1920 को असहकार आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तो असहकार आंदोलन उनका सफल नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो हिंसात्मक स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई और उसी के वजह से यह आंदोलन असफल रह गया। उसके बाद 1930 को उन्होंने दंडी यात्रा प्रारंभ की। तो वह भी आंदोलन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उनका आंदोलन सफल रहा। और उसके बाद 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ये उनका सबसे बड़ा आंदोलन था। तो इस आंदोलन में उन्होंने जो पूरे ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भारत छोड़कर जाओ, ऐसे आंदोलन जो सारे देश को दिया था। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन ये सबसे बड़ा आंदोलन था और सफल आंदोलन था।
तो इसके बाद इस तरह से 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। तो इनको बहुत बार जेल भेजा गया, बहुत बार इनको शिक्षा दी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी अपने बारे में चिंता नहीं किया और पूरे देश के लोगों को इन्होंने स्वतंत्र दिलाने के लिए अपना प्राण समर्पित किया। तो इसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु कैसे हो गई, तो किस लिए हो गई, यानी कि एक बार क्या हुआ था कि जो 1948 में जो है भारत विभाजन होने वाला था, तो उसी समय वहाँ पर हमारे देश के बहुत ही गण्यमान्य लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में जो है कुछ विचार सहमत नहीं थे। तो इसी कारण महात्मा गांधी जी एक बार बिरला भवन में थे और उसी समय नाथूराम गोडसे जी ने 1948 को इनके ऊपर गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी, क्योंकि इनके जो विचार थे उनसे वो सहमत नहीं थे। इसलिए उस दिन उनकी मृत्यु हो गई, या उनके गोली मारने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आज का यह दिन हमारे लिए एक दुखद दिन भी कहा जाता है और इसीलिए हम उनको, महात्मा गांधी जी को याद करते रहते हैं। जो भी हो, लेकिन महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और राष्ट्रपिता के तौर पर हम उनको जाने जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir, for your enlightening words. Now I take the honor of inviting our beloved principal, Dr. C.B. Pan of today's assembly. I take this opportunity to express my sincere gratitude to our respected principal, teaching and non-teaching staff and students for their presence, and a heartfelt thanks to everyone who contributed to making this event meaningful and memorable. Let us remember that the best tribute we can offer to our martyrs is to live with honesty, kindness, and sense of responsibility towards our nation. Finally, let us all raise in respect and pride as we conclude today's assembly with the national anthem. Full attention.